وقت ساری پارٹیز مل کے صرف اس چیز سے کوشش کر رہی ہیں کہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں، تاکہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہو تو ایک عوامی حکومت بنائیں جو وہ مسائل کا حل کر سکے۔ خان صاحب آئے تھے میرے گھر تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں، میں کل بھی بھٹو والا ہوں، یہ آن ریکارڈ۔ تو میں اس حوالے سے میں پھر سمجھتا ہوں میں اپنے گھر آیا ہوں، مجھے انتہائی خوشی ہے۔ میں پی ٹی آئی میں بھی گیا تھا تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا۔ ندیم افضل چند کی بلاول بھٹو سے ملاقات، دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کو عدم اعتماد سے پہلے خود مستعفی ہو جانا چاہیے، اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو اسلام آباد پہنچ کر عدم اعتماد لائیں گے، وزیر اعظم کا بندوبست ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، مشترکہ اپوزیشن کا فیصلہ قبول ہوگا۔ ندیم افضل چند بولے کہ پیپلز پارٹی چھوڑنا غلط فیصلہ تھا، پی ٹی آئی میں بھی پرانے ورکرز کی بات کرتا تھا۔ پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب گامزن، نعت فیروز بلاول بھٹو ناصر باغ لاہور میں خطاب کے بعد عوامی مارچ کی قیادت کرتے روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو دوسری تقریر مرید کے، تیسرا خطاب شیرامالا باغ گجرانوالہ میں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کی آج کی حتمی منزل وزیر آباد ہوگی۔ عوامی لانگ مارچ سے پنجاب کے عوام جاگ رہے ہیں، کئی اور رہنما بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ ہمارے وزراء پرانے جیالوں کے لیے کھلے ہیں، لانگ مارچ سے پرانے جیالے بھی گھروں سے نکل رہے ہیں۔ عوام نے عمران نیازی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، شہری اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیر الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ستائیس فروری کو کراچی سے شروع ہوئے تھے، جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، ہزاروں کا بلکہ میرے خیال ہے اب لاکھوں میں وہ کنورٹ ہو چکا ہے، قافلہ ان کے ساتھ ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کو، وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کی رائے لینے، اور رائے سب کی یہی ہے کہ جلد سے جلد عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارا کارواں جو کراچی سے چلا تھا جس طرح سے پرامن طریقے سے وہ پرامن انداز میں اسلام آباد پہنچے اور اپنا سفر ختم کرے، لیکن اگر مختلف مقامات پر اس قسم کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہوں گی تو یہ کسی بھی واقعے کا جو ہے وہ اس پر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے ورکرز کی طرف سے، کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی رہنمائی میں پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ رواں دواں ہے، لانگ مارچ میں ہوتا ہوں، واپس بھی آ جاتا ہوں، لانگ مارچ سے عوام موبلائز ہوئی، پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی بولے کہ کراچی سے نکلنے والا عوامی لانگ مارچ کامیاب ہو گیا ہے، امید ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عوام خوشخبری سنیں گے۔ گھوٹکی سے شروع ہو کر مارچ حیدرآباد پہنچا۔ ساتھ جو رابطہ مہم ہے یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ سندھ کے لوگوں کا، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کا میں جتنا شکریہ کروں کم ہے، جس گرم جوشی سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، جو ہمیں عزت دی، جو محبت دی، وہ قابل دید ہے اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اب ہمارا قافلہ ہماری آخری منزل جو سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی، جہاں پہ بڑے بڑے بنگلوں میں سندھ کی عوام کا پیسہ چوری کر کے سندھ کے حکمران رہتے ہیں، وہ شہر کراچی۔
सिंध के अवाम से राबिता मुहिम जारी रहेगी। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके, माकूल मुतबादल चाहते हैं और PTI बेहतरीन मुतबादल है। अली जैदी सिंध के मसाइल पर चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी बोले, कराची मुल्क का मुआशी हब, शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस हब बनाना है। सिंध के अवाम का खून चूस रहे हैं। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल भुट्टो के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। इमरान खान ने अवाम के लिए कीमतें क्यों कम कर दी और अब एक दफ़ा फिर इन्होंने सर्कस लगाया हुआ है। तो मैं इस सर्कस के ऊपर कौम का और अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। हम जब खुददारी की बात करते हैं तो इसी से कौमें बनती है। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी जो था वो इन्हीं दो बुनियादों पे तहरीर किया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले और इसका न सिर्फ जिक्र किया बल्कि हुकूमत के में आने के बाद इसका अमली मुजाहिरा किया और तमाम पॉलिसीज़ अपनी खुददारी के ऊपर उन्होंने तश्कील दी। अपोजिशन ने मुल्क में सर्कस लगाई हुई है। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हो गई है। अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। तारीख पर तारीख देने वालों को शिकस्त हुई है। सियासी मैदान हो या पार्लियामान, वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब रहे। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का इस्तेहसाल किया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। दुनिया भर के लीडर से बात की। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। लकी रानी सर्कस है जो शहर से शहर फिर रहा है और जाहिर है कि लोग तमाशबीन भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं, महजूज भी होते हैं, लेकिन उसको बस आप एंटरटेनमेंट वैल्यू तक रखें। और ये मुफ्त टिकट की जो एंटरटेनमेंट मिल रही है लोगों को पिछले कई दिनों से, तो आप शहरियों को उससे महजूज होने दें। और इस सर्कस का जो आखिरी मुकाम होगा वो पिंडी होगा। उसके बाद फिर ये तितर बितर हो जाएंगे और फिर वापस अपने शहरों में जाकर, अपने कस्बों में जाकर अगले सर्कस के शो की तैयारी शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी की लाहौर में, पंजाब में क्या सपोर्ट बेस है, आप मुझे ये बताएं। पीपल्स पार्टी के लोगों की तो ज़बानें से जब्त हो जानी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि अपोजिशन की लकीर ईरानी सर्कस शहर से शहर फिर रही है। अपोजिशन मुफ्त टिकट में अवाम को तफरीह फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में सपोर्ट नहीं। आइंदा इलेक्शन में इनकी यहाँ से जमानतें जब्त होंगी। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के बारे में शहबाज शरीफ के पास कोई सबूत नहीं। लाहौरियों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। दरख्वास्त है कि अपने मुशीरान से मोहतात रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम, बोले कि वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में खलीज हायल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मीडिया में जाने से रोकने के इत्तलात हैं। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। पीक ऑर्डिनेंस के हवाले से मामलात सुलझाने का टास्क मुझे दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अरकान असम्बली को बैरून ममालिक दौरों पर भिजवाने का प्लान तैयार। 45 से 50 अरकान असम्बली को रवा माह 8 ममालिक के दौरे कराए जाएंगे। पासपोर्ट्स मंगवा लिए गए। अपोजिशन मेंबरान असम्बली को वफूद का हिस्सा बनाने की दावत। शक वाले हुकूमती अरकान असम्बली को भी वफूद का हिस्सा बनाया जाएगा। अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। तैयारियों में तेजी आ गई। तमाम अपोजिशन मेंबर इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए। अपोजिशन जमातों के सरबराहान की मशावरत के बाद पार्लिमानी लीडर्स को हिदायत जारी। हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने का कह दिया। अपोजिशन जमातें पीर से पार्लिमान में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। रवा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मेलसी का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमराह होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का सेल्स टैक्स रिफंड्स फौरी अदा करने का मुतालबा। कहती हैं कि ट्रैक्टर और ज़रई आलात बनाने वाले यूनिट्स बंद होना अफसोसनाक और मईशत के लिए ख़तरनाक है। इन यूनिट्स का बंद होना ज़राअत और सनत दोनों के लिए तबाही का सबूत है। ज़राअत और किसान मुतासर होने के साथ गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। ये इमरान साहब की लाई गई तरक्की के भयानक असरात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मछली चौक के पास नई तामीर शुदा सड़क पर ब्रेकर बनाने पर इजहार बरहमी। ग्रेज से हॉक्स बे तक सड़क की तामीर की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की हॉक्स बे से कैंट तक काम तेज करने की हिदायत। शाकीवाड़ा मेहराब खान टेनरी रोड और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के काम का जायजा लिया गया। ज़ेरे तामीर ककड़ी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दौरे में ब्रीफिंग दी। लिया में MM रोड गोला अड्डा के करीब ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जाम बहक 19 जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में शादी के बाद फतेहपुर जाने वाली वैन चौक आजम से मुल्तान जाने वाली कार से टकरा गई। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को तहसील हस्पताल चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। रूस का यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की अब तक 2037 अस्करी तनशीबात तबाह कर चुके। यूक्रेन ने 5000 गैर मुल्कियों को यरगमाल बना रखा है। यूक्रेन ने रूस की इंसानी राहदारी के क़याम की पेशकश मुस्तरद कर दी। यूक्रेन से 13 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। अमरीका, जर्मनी, नीदरलैंड्स का लिथुआनिया में मजीद अफराज भेजने का ऐलान। कौमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का अहम संग मील अबूर कर लिया गया। 100 मिलियन पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीनेशन मुकम्मल करा ली। सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट में बताया कि 127 मिलियन से ज़ायद अफराद एक खुराक हासिल कर चुके। हम तमाम अहल अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन के करीब हैं।
کورونا کی نئی لہر کے پاکستان پر وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 7 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 30,258 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 15,14,258 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 5,69,978، پنجاب میں 5,02,621 کیسز رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 2,16,983، اسلام آباد میں 1,34,620، بلوچستان میں 35,380، گلگت بلتستان میں 11,570 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ اور پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کے موقع پر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، اسٹیڈیم کے تمام انٹری پوائنٹس پر باقاعدہ چیکنگ کے بعد شائقین کو داخلے کی اجازت، جگہ جگہ واک تھرو گیٹس نصب، شائقین کے لیے شناختی کارڈ اور کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازم قرار، شائقین سیکیورٹی انتظامات سے مکمل مطمئن۔